So guys, are you able to see my screen? Yes, sir. Okay, great. So now we are going to start with the industry analysis. So yesterday we have seen how the industry classification is done, how the industry groups are structured. Now we are moving on to the industry analysis. So guys, there are few features of every industry we need to see, and why we require it, because if we want to do stock selection, we need to see, okay, which industry the company is operating under and what are the characteristics of that industry. Knowing the characteristics of that industry helps us to understand the business model of the company and also to understand the business risk associated with the industry. An analyst can have superior information by studying industry characteristics and trends which give him or her an information advantage. So guys, there is a chart in the left, on the left side you can see. So there are few major points in that chart. So what are those four basic parameters? This is the threat of new entrants, bargaining power of suppliers, threat of substitutes, and bargaining power of the customers. So these four analysis, around these four analysis, if we are able to understand the industry in these four terms, then it becomes easier for us to know, okay, what kind of, how the company is going to operate and what kind of profitability and what kind of future the company can have that in industry and what is the risk associated with the company. On the broader level, so these were the parameters which were closely associated with the industry. On the broader level, we have the macroeconomics. Okay, what is the economics of the country in which the company is operating? What kind of a government is there, whether it is a stable government or whether there are some geopolitical tensions going on. Are there any social or environmental impact, or what is the technology influence on that industry, and what are the demographics? By demographic, can anyone tell me what do we mean by demography? Like the geography of the country. How? Geography, Sorry. Demographics is like environment, climate situation, so no. I think the it is like the age group of the, age group, so how social many social people preference. are under 70, what kind of age group people are there, and all those things. Okay, so it tells us a lot about the future potential of that country. Okay, and if the future potential of that country is promising, then it might be possible that the company which you are trying to invest or you are trying to just see or research on can have a promising future. Okay, so these are the major broader level and specific level of segments which we are going to talk about today. Okay, any question on this thing, guys? Does anyone have any question? No, sir. Okay, so first of all, we are going to see those four parameters which we have just elaborated in the previous slide. These are called a Porter 5 analysis. So guys, in interviews, this question is generally asked. Suppose anyone is doing business research or market research, so it's a very important question for them. The Porter 5 analysis, a Porter 4 or 5 analysis. Sometimes it is called 5 analysis, but since it has 5 parameters: threat of new entrants, bargaining power of buyers, bargaining power of suppliers, threat of substitute, and the fifth one is rivalry among existing competitors. So Porter 5 analysis or Porter 5 forces. So there is a management consultant called Michael Porter. He has introduced this concept, and it is important concept for doing a business research or for doing the industry analysis. So we will discuss all the points one by one. So first one is the threat of new entrants. So guys, can you tell me what do we mean by threat of new entrants? Entry barrier. Entry barrier.
Yes, sir. Okay, so how easy it is for a company to enter into that industry? How easy or how difficult it is for a new company to enter into a industry? And how, what kind of barriers can be there? Can anyone tell me? I mean, If one I company, say particular industry has a high barrier to entry. economies of scale of that company, if they are high, and like they're, if a company in that industry is close to monopoly, then obviously he has more power in that market to restrict other Okay, entities. anything else? Anything else, guys? Government can also be a barrier to entry. So guys, there can be some regulatory requirements from the government. Okay, that you need to have this much environmental clearances, this much licenses you need to have. So suppose if you want to enter into a alcohol industry or the beverage industry, so is it easy to start making your own alcohol? no, sir. No, because there are a lot of government regulations. Okay, lot of licenses we need to take. Okay, now suppose if I want to enter into an airline industry today, so is it easy to enter into an airline industry? No, Why? because you need permission from the aviation ministry and all of that. And also lot of capital is required. So capital requirement is also a barrier to entry sometimes. So if the business is very much capital intensive, I need the capital. So guys, suppose if I want to have a contract of a highway construction, so is it easy for me to get the contract? No, you need capital. Because first of all, I need all the automobiles and machinery for that. Okay, and that costs too much. Okay, and also sometimes government also issues at least you should have 3 years of experience or 5 years of experience in construction. So guys, it becomes very much difficult to enter into such industries. Okay, are you getting the point, guys? Yes. Any doubt? Yes. Now talking about bargaining power of buyers. So how much bargaining power the customer has? This is very important. How much bargaining power the customer has? So it depends on number of customers. Okay, how much power the customer is having? It depends on the number of customers. Size of each customer order. Which one will have a higher bargaining power? A big order or a small order? Big order. Big order. Bigger the order, higher the bargaining power. But also, if there are more number of customers, then also the bargaining power lies with the customer, right? Like, So it depends. Like suppose I am a company and I have only 4 customers. Okay, so my 100% of the revenue is attributable to only 4 customers. So those customers have a larger bargaining power because they know if any one of us will back out, the company's revenue will be impacted. Okay, are you getting the point? So suppose there is a aircraft part supplier. So there are only 2 companies in the industry which manufacture commercial airplanes, passenger airplanes. Which are those companies? Boeing and Airbus. Boeing and Airbus. So do you think those part suppliers will have a say? Have the bargain? Yeah, because they are the only companies there. Correct. So the buyers for them is the Airbus and Boeing. So they will give big orders. So they might have a bargaining power. Okay. Is the point clear to you guys? So in that case, that example, the supplier has the bargaining power. No, like if No. Boeing Airbus are supplying airlines to certain industries. For a supplier, like if you are trying to understand the aircraft part industry, aircraft part industry, those who manufacture aircraft. So there are majorly 2 customers for in that industry, Boeing and Airbus, correct?
Sorry guys, there was some connectivity issue from my end. So am I audible now? Yes, sir. Yes, sir. Okay guys, great. So yes, we were discussing the airplane supplier market. So Shane, who are the buyers for airplane supplier market? Buyers, Yes, who will एयर buy इंडिया the? हो गया, फिर No. I am talking about air part suppliers. So Boeing and Airbus are the major. That is the after sale service you are talking about. अच्छा, okay, correct. Okay, Then Boeing and Airbus are only the two are the customers buyers for. for them. Okay. Now we need to analyze how many suppliers are there. Suppose there are a lot of suppliers, then who has the bargaining power, the supplier or the buyer? Buyer will have, no? There are two buyers. If there are only few suppliers, then it is not compulsory that buyer will have the advantage. हाँ, Okay. So you need to see the overall market on the basis of buyer and on the basis of supplier. Okay. Is that fine with you? Shane? Yes. Okay, good. So larger the number of customers a company is having, lower is the bargaining power of customers. Why? Because the company will think, okay, if he or she does not buy the product, I will sell the product to another customer. Okay. Then comes the switching cost also. Okay, so what do we mean by switching cost? Suppose if I don't buy this product from from a particular company, and can I easily buy the product from the another company? That is the switching cost. Can I easily buy the product from the another company? So suppose if you went to a Maruti showroom and you are trying to buy a car and the distributor says that there is a waiting of 6 months. Okay. Now you need to travel daily from Pune to Bombay. Assume. So now you want a car. Okay. So if you wait for 6 months, your cost will be very much. So what you will see, you will try to see, okay, जहां पे जल्दी मिल रही है वहां से बाय कर लेते, अगर स्विचिंग कॉस्ट लो है. अगर स्विचिंग कॉस्ट ज्यादा है, वो ज्यादा कैसे होगी? आप दूसरे शोरूम पे गए, वहां पे बोलते हैं कि भाई 10 महीने की वेटिंग है, तो स्विचिंग कॉस्ट ज्यादा हो जाती है. सो हमेशा ये चीज देखना जरूरी है कि अगर मैं अपनी कंपनी को चेंज कर रहा हूं तो मेरी कितनी कॉस्ट लगने वाली, क्या लॉस होने वाला है. जनरली दैट लॉस इज बीन सीन एज अ इकोनॉमिक लॉस, कि पैसों के टर्म्स में मेरे को कितना लॉस होगा. इज दैट पॉइंट क्लियर गाइस? क्लियर है? yes. Okay. Then the another point, threat of substitutes. थ्रेट ऑफ सब्सटीट्यूट का मतलब कि आपका जो प्रोडक्ट है, ऐसा तो नहीं है कि कल को अगर ये ग्रो करना चालू हो या इसके प्राइसेस बढ़ाना चालू हो तो पीपल विल स्विच ऑन टू अनदर प्रोडक्ट. तो जैसे हम केस लेते हैं, क्लासिक केस टी और कॉफी का, कि अगर टी महंगी हो जाएगी तो लोग कॉफी पीना स्टार्ट कर देंगे. तो जो टी मैन्युफैक्चरर्स हैं उनके पास क्या है, ये एक लॉस है कि वो अपने प्राइसेस को एक लिमिट से ज्यादा बढ़ा नहीं सकते. एक लिमिट से ज्यादा बढ़ाएंगे तो क्या होगा? लोग क्या होंगे, चाय Switch पीना कर बंद कर देंगे. देंगे, कॉफी में चले जाए. ठीक है. तो आपको इस टर्म्स में भी सोचना पड़ता है कि भाई इसका कोई सब्स्टिट्यूट भी है क्या, या कोई नई टेक्नोलॉजी या कोई नया प्रोडक्ट बन रहा है, कोई मटेरियल बन रहा है जो इसको रिप्लेस कर सकता है. ओके. दिस इज हाउ यू नीड टू सी. जब आप किसी भी कंपनी का एनालिसिस कर रहे हैं, उसके प्रोडक्ट का एनालिसिस कर रहे हैं, तो आपको देखना पड़ेगा कि भाई ये जो प्रोडक्ट है इसका क्या सब्स्टिट्यूट है, ये एक नेसेसिटी का आइटम है या एक हाई टेक्नोलॉजी का आइटम है. तो जनरली गाइस जो टेक कंपनीज होती हैं जो प्रोडक्ट लगाती हैं, उनको एनालाइज करना बहुत मुश्किल होता है, एंड देयर आर मोर प्रोन टू सब्स्टिट्यूट्स. ठीक है. क्योंकि टेक्नोलॉजी इतनी जल्दी चेंज होती है कि हो सकता है जो आप सॉफ्टवेयर यूज कर रहे हो, जो टेक्नोलॉजी सॉफ्टवेयर को बनाने में यूज कर रहे हो, वो पुरानी हो जाए और कोई नई टेक्नोलॉजी उसकी जगह आए. ओके. तो इसके लिए हम एग्जांपल लेते हैं, जैसे नोकिया का एग्जांपल है. तो एक टाइम में नोकिया का सबसे ज़्यादा मोबाइल बिकते थे, लेकिन ड्यू टू द चेंज इन टेक्नोलॉजी एट अ वेरी फास्ट पेस,
They were not able to keep pace with the technology, and now they have been diminished. Okay, guys? Any doubt? किसी को कोई डाउट है तो पूछ लो. Great. बार्गेनिंग पावर ऑफ सप्लायर्स. अब जहां से आपको रॉ मटेरियल मिल रहा है, जो आपको रॉ मटेरियल दे रहा है, उसकी बार्गेनिंग पावर देखनी पड़ेगी. सो सपोज यू आर इन आयरन स्टील इंडस्ट्री, तो आपके लिए रॉ मटेरियल क्या होता है? आयरन ओर. वो आपको कौन देता है? माइनिंग कंपनीज देती है. इफ देयर आर ओनली फ्यू माइनिंग कंपनीज, तो सप्लायर की पावर ज्यादा होगी कि स्टील कंपनीज की पावर ज्यादा होगी? There are only few. There are only few miners who provide iron ore. तो suppliers की power ज़्यादा. Just give me a second, guys. Yes, Shanay, what you were discussing, what you were saying. सर सप्लायर का बार्गेनिंग पावर स्ट्रांग रहेगा. सप्लायर की बार्गेनिंग पावर ज्यादा होगी, क्योंकि ये क्या है ना, एक लिमिटेड रिसोर्स दे आर सप्लाई, और सब लोग उसमें है नहीं. तो आपको देखना पड़ेगा कि भाई सप्लायर की बार्गेनिंग पावर ज्यादा है. अब इसमें एक चीज और इम्पोर्टेंट होती है, बैकवर्ड इंटीग्रेशन. बैकवर्ड इंटीग्रेशन मतलब स्टील कंपनी सोचे कि मैं खुद ही रॉ मटेरियल बनाना चालू कर देता. तो कहीं कहीं केसेस में, केमिकल कंपनीज के केस में ऐसा होता है, अगर कॉस्ट बहुत हाई हो जाती है तो वो केमिकल कंपनी सोचती है कि वो जो इंटरमीडिएटरी केमिकल है उसका खुद प्लांट डाल देती है और खुद बनाना स्टार्ट कर देती है, और खुद ही को अपनी इन हाउस सप्लाई देती है. ठीक है? आर यू गेटिंग द पॉइंट, गाइस? Yes, अगर बैकवर्ड इंटीग्रेशन इजी है तो सप्लायर की पावर ज्यादा होगी या कम होगी? कम हो गई ना. कम होगी. क्यों? क्योंकि अगर वो ज्यादा अपने आप को ज्यादा हाई प्राइस पे बेचेगा तो क्या हो सकता है? ये केस हो सकता है कि कस्टमर खुद ही उसके रॉ मटेरियल का प्लांट डाल दे. ठीक है? तो कभी कभी ये चीजें इंपॉर्टेंट की होती है कि सप्लाई डिसरप्शन देखना भी बहुत जरूरी होता है कि हाउ मच वी आर डिपेंडेंट इन चीजों में. सपोज अभी कोविड टाइम्स की बात चल रही है, तो बहुत सारे लोगों का रॉ मटेरियल चाइना से आता है. तो कोरोना के टाइम में क्या हुआ कि चाइना में सबसे पहले कोविड हुआ तो लॉकडाउन लग गया, तो वहां पे जो शिप्स थे वो वहीं अटक के रह गए, तो लोगों के पास रॉ मटेरियल नहीं आता. ठीक है? तो आपको ये देखना भी जरूरी है कि क्या आप रॉ मटेरियल 4 अलग अलग जगहों से लेते हो, या आप रॉ मटेरियल बस एक ही बंदे से ले रहे हो, या एक ही कंपनी से ले रहे हो. जितना ज्यादा कॉन्सेंट्रेशन होगा उतना ज्यादा रिस्क हो सकता है. ठीक है? इज द पॉइंट क्लियर टू यू गाइस? अब राइवलरी अमंग एग्जिस्टिंग कॉम्पिटिटर्स. तो राइवलरी मतलब कि उस मार्केट में कंपटीशन कितना हाई है, कैसा कंपटीशन चल रहा है. तो नंबर ऑफ कॉम्पिटिटर्स, बहुत ज्यादा कॉम्पिटिटर्स है तो कंपटीशन हाई होता है. डाइवर्सिटी ऑफ कॉम्पिटिटर्स, अगर डाइवर्सिटी ज्यादा है मतलब अलग अलग प्रोडक्ट्स बेच रहे हैं कॉम्पिटिटर्स, तो ठीक है, तो कंपटीशन कम. अगर होमोजीनियस प्रोडक्ट्स बेचते हैं तो कंपटीशन बहुत ज्यादा होता है. होमोजीनियस प्रोडक्ट्स मतलब सारे एक ही तरीके के प्रोडक्ट्स बेचते. अभी मैंने बोला नंबर ऑफ कस्टमर ज्यादा है तो कंपटीशन ज्यादा हो सकता है, बट अगर 2 कॉम्पिटिटर्स हैं, एक का मार्केट शेयर 45 है, एक का 55 है, तो कंपटीशन हाई होगा कि लो होगा? लो कंपटीशन ना. कैसे? फ्लिपकार्ट और अमेजोन में हाई कंपटीशन है कि लो कंपटीशन है? इन दोनों में है. उसमें क्यों हाई है? 2 ही कंपनी है बस ई कॉमर्स में. मेजर मार्केट शेयर उनके पास. क्योंकि उनके पास ना इक्वल मार्केट शेयर है. इक्वल मतलब ज्यादा डिफरेंस नहीं है मार्केट शेयर. तो दोनों कहीं ना कहीं एक बराबर की कंपनी हुई कि नहीं हुई? तो दोनों कहीं ना कहीं उस सेक्टर में लीडर बनना चाहती हैं. बोइंग और एयरबस है सिमिलर एग्जांपल. कंपटीशन हाई है कि लो है? इंटेंसिटी हायर. हाई.
क्यों? क्योंकि दोनों, अब मान लो एक कंपनी है 80% मार्केट शेयर पे और एक कंपनी है 20% मार्केट शेयर पे, तो कंपटीशन इंटेंस होगा कि मीडियम होगा कि लो होगा? लो। तो लो। लो टू मीडियम हो सकता है ना, क्योंकि एक काफी बड़ी कंपनी है, एक जाइंट बन गई है, एक छोटी कंपनी है। लेकिन अगर अगल बगल की कंपनी है, बराबर की कंपनी है, तो कंपटीशन हाई हो सकता पर अभी जैसे like more the players in the market, that also है। is सॉरी, one. कौन सा? अगर ज्यादा players है उस इंडस्ट्री में, हाँ। like if there are 15-20 companies, हम्म। and supposing one company has like around 40, 50, 50% market share, हाँ। and there are other 20-30 companies जिसका मिल बांट के 50% और हो जाता है. In that case also the competition is high, or it is. फॉर द मेजर ऑफ द इंडस्ट्री द कंपटीशन इज हाई। अब आपको उसमें ये देखना पड़ेगा कि वो जो प्रोडक्ट बेच रहे हैं उसमें क्वालिटी इंपॉर्टेंट है कि क्या चीज इंपॉर्टेंट हाँ, है। डिफरेंशिएशन भी हाँ, प्रोडक्ट फैक्टर. डिफरेंशिएशन इंपॉर्टेंट है या नहीं है? क्योंकि सपोज करो अगर वो 15-20 कंपनी आपस में फाइट कर रही है और ये अलग कंपनी फाइट है, तो इसका मतलब या तो उसका प्रोडक्ट सेगमेंट ही अलग है। ठीक है, जैसे एप्पल है, अब एप्पल का मोबाइल है और बाकी आप देखो Xiaomi, वीवो, वो सब है। तो अभी आप क्या बोलोगे इसको, इंडस्ट्री को किस तरीके से बोलोगे? एप्पल का क्वालिटी इज बेटर, क्वालिटी के हिसाब तो से इसका जज मतलब होता है. एप्पल डायरेक्ट Xiaomi या वीवो के कंपटीशन में नहीं है। इंडस्ट्री एक है, लेकिन प्रोडक्ट सेगमेंट अलग होगा, प्रोडक्ट ऑफरिंग अलग होगा, है ना? आर यू गेटिंग माय पॉइंट शने? प्रोडक्ट ऑफरिंग ऑल्सो आखिर में तो दे आर सेलिंग मोबाइल, जस्ट द क्वालिटी ऑफ मोबाइल दैट इज डिफरेंशिएटिंग. लेकिन जो टारगेट ऑडियंस है वो अलग है ना। ओके. आप ये देखो ना, टारगेट एप्पल एक अलग टाइप के टारगेट ऑडियंस को टारगेट कर रहा है, Xiaomi और Vivo एक अलग टाइप की ऑडियंस को टारगेट कर रहा है। अब ना, कैन BMW विल बी इन कंपटीशन विद मारुति या Hyundai? नहीं. नो सर। है ना? तो पूरा ओवरऑल ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री को थोड़ी देखेंगे हम, ये देखेंगे कि भाई हैचबैक के सेगमेंट में कंपटीशन है, कि भाई एसयूवी के सेगमेंट में कंपटीशन नहीं है, क्योंकि दो ही कंपनियां काफी अच्छा कर रही हैं और नॉर्मल। तो ये चीज हमको देखनी पड़ती है, फ्रेगमेंट करना पड़ता है कि हमारी कंपनी क्या प्रोडक्ट बेच रही है और बाकी कंपनीज क्या प्रोडक्ट बेच रही है। ओवरऑल लेवल पे देखोगे तो आप बोल दोगे यार बहुत ज्यादा कंपटीशन है ऑटोमोबाइल में। बट आप कहीं कहीं देखोगे कि मिड एसयूवी कौन बनाता है, तो हो सकता है 2-3 कंपनी बना रही हो। और जैसे जैसे अगर हाई ग्रोथ इंडस्ट्री में कंपनीज होती हैं तो कंपटीशन कम होता है। कंपटीशन बढ़ता कब है? व्हेन द कंपटीशन इंक्रीजेस, जब ग्रोथ स्लो डाउन होती है, तब एक दूसरे का हमको हिस्सा छीनना होता है। वी नीड टू कैप्चर द मार्केट शेयर ऑफ अदर कंपनी। जब हाई ग्रोथ चल रही होती है तो कोई कंपनी टेंशन नहीं लेती। क्यों? सब बढ़ रहा है. क्योंकि उनका भी मार्केट बढ़ रहा है ना। बट जैसे जैसे स्लो डाउन होती है वैसे वैसे इंटेंसिटी बढ़ती है। अभी ई कॉमर्स में पहले कितनी सारी कंपनीज थी शुरुआत में? थी ना, जबोंग थी, शॉप क्लूज थी, मिंत्रा. स्नैपडील थी, मिंत्रा तो खैर अभी भी है, yepme.com, jabong.com, शॉप क्लूज, स्नैपडील थी ना। जैसे जैसे मार्केट की ग्रोथ स्लो हुई, अभी क्या हुआ, एक दूसरे का हिस्सा खाना चालू हुआ। और आप एक टाइम से ज्यादा डिस्काउंट नहीं ऑफर कर सकते। अनलिमिटेड टाइम के लिए क्या आप डिस्काउंट ऑफर कर सकते हो? नो। कभी ना कभी तो आपको पैसा बनाना ही पड़ेगा। सेम इज द केस विद, क्लासिकल केस विद विच इंडस्ट्री? आपकी टेलीकॉम इंडस्ट्री। कितने सारे होते थे पहले टेलीकॉम सप्लायर्स? काफी होते थे, एयरसेल, एयरटेल. अभी तो है, अभी भी सब है. चले गए, सब एक दूसरे की जगह एक्वायर हो गए। अभी क्या बचे? सिर्फ 3 प्लेयर बचे, है ना? तो इंडस्ट्री इस तरीके से चलती है। अभी टेलीकॉम इंडस्ट्री में राइवलरी कैसी है, इंटेंस की लो? लो। इंटेंस भी है सर। लो है, इंटेंस भी है, ये कैसा चक्कर है भाई? ठंड भी है, गर्मी भी है। इंटेंस सर लो, सर लो इसलिए है इंटेंस ही क्योंकि है सर. इंटेंस है क्यों? क्योंकि आप देखोगे तो नेक टू नेक कंपटीशन चलता है एयरटेल और जियो का। जियो में। तो दोनों मार्केट लीडर बनना चाहते हैं, तो काफी इंटेंस है। प्लेयर्स कम है, लेकिन ड्यू टू देयर मार्केट शेयर राइवलरी इंटेंस। ठीक है।
Is the point clear to you guys? Yes, sir. Can we move ahead to the next slide? तो Yes, sir. इसको ना काफी पर्सपेक्टिव से सोचना पड़ता है हर पॉइंट को, ना कि एक नैरो पर्सपेक्टिव से कि एक चीज देखी और हमने डिसाइड कर लिया। आपको सोचना पड़ेगा अच्छा ओवरऑल मार्केट कैसा है, मार्केट की डायनेमिक्स कैसी है, क्यों किसी की प्राइसिंग पावर लो है, क्यों किसी की प्राइसिंग पावर हाई है, क्या कारण है प्राइसिंग पावर लो और हाई है। तो सबसे पहले आता है वेरियस फोर्सेस ऑफ कंपटीशन, बैरियर टू एंट्री, लार्ज इन्वेस्टमेंट, लार्ज कैपिटल इन्वेस्टमेंट टू स्टार्ट। अगर ज्यादा पैसा चाहिए स्टार्ट करने के लिए, वो भी एक एंट्री है। इसका मतलब हर कोई प्लेयर नहीं आ सकता, कम पैसा होगा तो कोई भी आ सकता है। मे और मे नॉट हैव प्राइसिंग पावर, प्राइसिंग पावर हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती। प्राइसिंग पावर हायर देन लो बैरियर्स टू एंट्री इंडस्ट्री। क्यों? क्योंकि अगर कम ही प्लेयर होंगे, सारे एंटर नहीं कर पाएंगे, तो कुछ ना कुछ प्राइसिंग पावर तो होगी। इकोनॉमिक प्रॉफिट ओवर द लॉन्ग रन इज अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ हाई बैरियर इंडस्ट्री। इकोनॉमिक प्रॉफिट मतलब वो कंपनी ज्यादातर प्रॉफिट बनाती है। क्यों? उसका क्या कारण है? क्योंकि जब कुछ ही कंपनीज होंगी, ज्यादा कंपनी आ नहीं पाएंगी, तो सपोज गाइस, सपोज करो कोई भी इंडस्ट्री होती है, अगर वो बहुत ज्यादा प्रॉफिटेबल होती है ना, तो उसमें पता है क्या होता है, उसमें नए प्लेयर्स आना स्टार्ट हो जाते हैं। जब नए प्लेयर आते हैं तो वो क्या करते हैं, वो कंपटीशन स्टार्ट कर देते हैं। प्राइजेस क्या होते हैं, लो हो जाते हैं कि हाई होते हैं? लो। लो हो जाते हैं। प्राइजेस अगर सबको लो करने पड़ते हैं तो प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ती है कि घटती है? घटती है। घटती है। तो उससे क्या होता है, कुछ कंपनी लॉस मेकिंग में चली जाती है, वो वैनिश हो जाती है, फिर कुछ कंपनी रह जाती है। ठीक है? तो अगर लो बैरियर टू एंट्री है तो कभी ऐसा मौका नहीं पड़ता है कि बहुत सारी कंपनीज आ जाएं और कंपटीशन बहुत हाई हो जाए। ठीक है? तो इट मे बी ड्यू टू लार्ज कैपिटल इन्वेस्टमेंट और मे बी ड्यू टू गवर्नमेंट लाइसेंस और रेगुलेशन। ठीक है? लो बैरियर टू एंट्री मतलब more number of players will come inside that segment or industry. नहीं, लो बैरियर टू एंट्री है मतलब कोई बैरियर नहीं है, ज्यादा कंपनी आ सकती है। हाई बैरियर होगा तो मतलब कम कंपनी है। ठीक है? इज दैट फाइन गाइस? अभी एग्जाम्पल दिया हुआ है, ब्रांडेड फार्मास्यूटिकल होती है, जो ब्रांडेड होती है उनकी बैरियर टू एंट्री हाई होती है। क्यों? सब्सटेंशियल फाइनेंशियल एंड इंटेलेक्चुअल कैपिटल रिक्वायर्ड टू कॉम्पीट इफेक्टिवली। तो R&D कॉस्ट बहुत हाई होती है, सालों साल हमको R&D करनी पड़ती है, फिर वो ड्रग का पेटेंट लेके उसको ब्रांड बनाना पड़ता है। ठीक है? ऑयल सर्विस, ऑयल सर्विस में क्या है, हाई कैपिटल रिक्वायरमेंट। ठीक है? और कहीं कहीं एक्सपीरियंस भी मांगा जाता है। टेक्नोलॉजिकल एक्सपर्टीज इज रिक्वायर्ड, लॉट ऑफ इनोवेशन अलाउज नीश companies to enter the industry and compete in specific areas. स्लम्बर्जर, बेकर ह्यूज, हैलिबर्टन, ऑयल सर्विसेज का हाई है क्योंकि ऑलरेडी एक एक्सपर्टीज आपको चाहिए होती है। अगर आप और मैं कल को चाहें कि ऑयल एंड गैस इंडस्ट्री में एंटर करें तो हम कर सकते हैं क्या? नो सर। नहीं ना, क्योंकि एक एक्सपर्टीज चाहिए, कैपिटल चाहिए, वो हमारे पास नहीं है। अभी मैं और आप चाहें कि अब एक टॉफी की, एक कैंडी की फैक्ट्री लगा ले तो हम लगा सकते हैं? यस सर, अगर कैपिटल है तो लगा सकते हैं। Sorry guys, I think I again got disconnected. Am I audible now? Yes, sir. So I was asking, if you want to enter into a chocolate industry, चॉकलेट बनानी है, टॉफी बनानी है, तो उसकी बैरियर टू एंट्री हाई होगी, लो होगी, कैसी होगी? हाई होगी ना। लो होगी सर। हाई क्यों होगी शने? चॉकलेट इंडस्ट्री मतलब नीड उसमें लॉट कोई ऑफ टेक्नोलॉजी चाहिए चॉकलेट बनाने के लिए आपको? कोई इनोवेशन, कोई टेक्नोलॉजी, कोई पेटेंट? या आइसक्रीम ले लो, और सिंपलर टर्म्स में समझना है। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट ब्रांडिंग एंड एवरीथिंग। अगर आपको चॉकलेट इंडस्ट्री में एंटर करना है तो आप एंटर कर सकते हो कि नहीं कर सकते? कर सकते हैं सर। शने, व्हाट इज योर व्यू? I thought I was thinking that way that like कैडबरी से टक्कर potential लेनी है, ठीक है?
हाँ, नहीं so you नहीं need a lot of machinery, you need like नहीं, labor. मशीनरी क्यों चाहिए? वो देखो नॉर्मल है, इंडस्ट्री नॉर्मल में आपको चॉकलेट बनानी है, ठीक है, क्या आप एक नॉर्मल मशीनरी से भी बना सकते हो? यस। उसमें ऐसा तो नहीं है कि इसी चीज से ये चीज होगी, वो तो आपके ऊपर है कि आप कितनी हाईटेक मशीनरी ला रहे हो, क्या ला रहे हो, ठीक है। हम्म, आइसक्रीम है, आप कैसे भी बना सकते हो, यस और नो, है ना? तो उसमें क्या है, कोई रेगुलेशन नहीं है, कोई इनोवेशन की जरूरत नहीं है और कोई टेक्नोलॉजी की जरूरत नहीं है। तो द एंट्री टू बैरियर टू एंट्री इज मीडियम और लो फाइनेंशियल और टेक्नोलॉजिकल हर्डल्स, but new players would lack the established brands that drive consumer purchase decisions and potential supply chain operations. तो एंट्री तो इजी है, बट इशू क्या होता है? इशू होता है मार्केटिंग में और ब्रांडिंग में, ठीक है। तो इसलिए बहुत ज्यादा कंपनियां इंटरेस्टेड नहीं होती है, क्योंकि इंडस्ट्री डायनामिक्स ऐसी है कि जो ब्रांडेड प्रोडक्ट्स है वही बिकेंगे। अभी नूडल्स है, नूडल्स में कोई रेगुलेशन है ज्यादा नहीं है, बट फिर भी कंपनियां कम एंटर करती है नूडल्स में, क्यों? ड्यू टू द बिग जाइंट कॉल्ड नेस्ले। उनको पता है कि वो ब्रांड इतना स्ट्रांग है कि दे विल नॉट बी एबल टू कम्पीट विद दैट। इज दिस फाइन विद यू गाइस? गाइस, एम आई क्लियर ऑन दिस पॉइंट? Yes, sir. Yes, sir. Okay. Now we are talking about the industry concentration. You could also try to classify this feature as one of the subset feature of barrier to entry from an understanding perspective. High concentration, high barrier to entry, fierce competition. तो अभी जो हमने बात करी कि concentration high मतलब बहुत ही कम कंपनीज है, तो it might be possible that competition may be fierce. Analysis of concentration steps, largest player market share, relative comparison of it to the other players. तो गाइस मैंने बताया कि अगर फ्यूअर कंपनीज हैं तो हमको मार्केट शेयर देखना पड़ेगा कि किस कंपनी का कितना मार्केट शेयर है, तब हम इंटेंसिटी डिसाइड कर सकते हैं। नाइदर enjoy the scale advantage, one market share loss is gained by another market. तो कंपटीशन इतना हाई होता है कि एक का फायदा दूसरे का लॉस हो सकता है। तो इसमें क्या, टू फैक्टर एनालिसिस दिया हुआ है एग्जांपल में। एक इंडस्ट्री दी हुई है विच इज कंसंट्रेटेड विद स्ट्रॉन्ग प्राइसिंग पावर, ऑर्थोपेडिक डिवाइसेस, ठीक है, फार्मास्यूटिकल की कुछ कंपनीज दी हुई हैं। तो अब गाइस क्या है, कंपटीशन कंसंट्रेशन है लेकिन स्ट्रॉन्ग प्राइसिंग पावर भी, कि दोनों अगर ब्रांडेड है तो दोनों अपने प्रोडक्ट्स बढ़ा सकते हैं, दोनों अपने प्राइस बढ़ा सकते हैं। कंसंट्रेटेड विद वीकर प्राइसिंग पावर, बोइंग एंड एयरबस, ठीक है, बोइंग एंड एयरबस। अब इसमें इशू क्या है, जो यहाँ प्रोडक्ट्स लिखे हुए हैं कंसंट्रेटेड विद स्ट्रॉन्ग प्राइसिंग पावर, उसमें आप देखोगे ज्यादातर फार्मास्यूटिकल है, डिफेंस के प्रोडक्ट्स हैं, या बहुत ही सेंसिटिव प्रोडक्ट्स हैं। तो सेंसिटिव प्रोडक्ट्स के साथ कंज्यूमर क्या करता है, हाई प्राइस देने के लिए तैयार होता है कि नहीं होता है? यस और नो? व्हाट डू यू थिंक? Yes, sir. Yeah. अभी जैसे अल्कोहल इंडस्ट्री है, तो आप अगर आप कोई भी बियर या अल्कोहल या बेवरेज ले लो, कोई भी चीज आप कंज्यूम करते हो, अगर उसका थोड़ा सा प्राइस बढ़ जाता है तो क्या आप ड्रिंक को चेंज कर देते हो अपने? नहीं। है ना, नहीं करते ना, क्यों? क्योंकि आप कंज्यूम कर रहे हो एंड दैट इज समथिंग पर्सनल। तो ये फार्मास्यूटिकल में कंपनीज है, तो आप कभी भी जो, सपोज आप गए कि ये वाली दवाई दे दो, एंड कभी कभी स्टोर वाला बोलता है ये वाली नहीं है, सेम चीज ये वाले में है, तो आप उसको मना नहीं कर देते कि नहीं जो बोला है वही लूंगा, है ना? तो ये क्यों होता है? क्योंकि दैट इज अ वेरी सेंसिटिव प्रोडक्ट। नाउ वीक प्राइसिंग पावर है, कंसंट्रेटेड इंडस्ट्रीज है लेकिन प्राइसिंग पावर वीक है, आपकी ऑटोमोबाइल्स, कंपटीशन है लेकिन हम इधर उधर स्विच कर सकते हैं, सेमीकंडक्टर इक्विपमेंट, रिफाइनरीज, मेजर इंटीग्रेटेड ऑयल कंपनीज और कमर्शियल एयरक्राफ्ट। तो इंडस्ट्री ये भी कंसंट्रेटेड है बट वीक प्राइसिंग पावर। ओके, Weak pricing power as in supplier does not have the
power तो वीक प्राइसिंग पावर का मतलब अगर बोइंग ने प्राइस बढ़ाए तो कस्टमर किस पे चला जाएगा? एयरबस पे। ठीक है, मतलब मन चाहे तरीके से अगर कल को मारुति अपनी गाड़ी के प्राइस बढ़ा देगा तो क्या कंपनी कस्टमर दूसरी कंपनीज पे जाएगा या मारुति पे बना रहेगा? ठीक है, तो दिस इज वीक सब्स्टिट्यूशन प्राइसिंग। हो गया ना, क्या? एक तरीके से सब्स्टिट्यूशन ही हो गया ना। नहीं, कार, एक कार नहीं मिली दूसरी कार खरीद ली तो सब्स्टिट्यूट कहाँ हुआ? सब्स्टिट्यूट तो मतलब चाय और कॉफी। ठीक है, आप कोल यूज कर रहे थे, अब आपने नेचुरल गैस यूज करना चालू कर दिया है। सब्स्टिट्यूट मतलब जिसकी एप्लीकेशन सेम है बट प्रोडक्ट दूसरा है। अभी आप मारुति की कार खरीद रहे थे और आपने अब ह्युंडई की खरीदी तो कार ही ना, या आपने साइकिल खरीदी? आर यू गेटिंग द पॉइंट? अभी इलेक्ट्रिक व्हीकल के लिए सब्स्टिट्यूट क्या है? जो हमारे पेट्रोल और डीजल की कार है कि नहीं है? अगर इलेक्ट्रिक व्हीकल के प्राइसेस हाई रहेंगे तो एडॉप्शन कम होगा कि नहीं होगा, क्योंकि ऑलरेडी देयर इज अ सब्स्टिट्यूट। जनरली ये डायरेक्ट सब्स्टिट्यूट नहीं है, डायरेक्ट सब्स्टिट्यूट वो होगा जो किसी ग्रीन फ्यूल पे चल रहा होगा। सीएनजी है ना? तो लोग अगर सीएनजी खरीदना चालू कर देंगे जो एनवायरनमेंट के लिए प्रति केयर करते हैं, तो डेट इज अ सब्स्टिट्यूट। बट अभी मैं ह्युंडई की पेट्रोल इंजन की कार खरीद रहा था, महंगी हो गई तो मैंने मारुति की पेट्रोल इंजन की कार खरीद ली। दैट इज नॉट अ सब्स्टिट्यूट, दैट इज अ स्विच। स्विच में और सब्स्टिट्यूशन में ये फर्क है। इज माय पॉइंट क्लियर? शने? यस सर। ओके, अब आता है आपका फ्रेगमेंटेड विद स्ट्रॉन्ग प्राइसिंग पावर। फॉर प्रॉफिट एजुकेशन इंडस्ट्री, एनालॉग चिप्स, इंडस्ट्रियल डिस्ट्रीब्यूशन, प्रोपेन डिस्ट्रीब्यूशन, प्राइवेट बैंकिंग। ठीक है, तो प्रॉफिट एजुकेशन कॉलेजेस होते हैं, कुछ प्राइवेट कॉलेजेस हैं, कंपटीशन बहुत टफ है, फ्रेगमेंटेड मार्केट है। मार्केट फ्रेगमेंटेड है लेकिन प्राइसिंग पावर है कि नहीं है कुछ कॉलेजेस के पास? तो डेट इज ड्यू टू देयर ब्रांड एंड ड्यू टू देयर क्वालिटी। प्राइवेट बैंकिंग, एचडीएफसी, आईसीआईसीआई। अब एचडीएफसी, आईसीआईसीआई स्ट्रॉन्ग प्राइसिंग पावर है, यस और नो? यस सर। अगर आपका बैंक कल को आपके क्रेडिट कार्ड में 50 रुपए बढ़ा देता है या फीस काटता है, तो आप ऐसा करते हो कि आईसीआईसीआई पे चले जाते हो? क्यों नहीं जाते? बिकॉज द स्विचिंग कॉस्ट इज हाई। अभी अकाउंट खुलवाना है, पेपर वर्क करना है, बैंक जाना पड़ेगा, वहां साइन करना पड़ेगा। सो यू आर नॉट रेडी। आप बोलते चलो 50-100 रुपए बढ़ा दिए, कोई बात नहीं, मैं अपने बैंक के पास ही रहता। ठीक है, एम आई क्लियर ऑन दिस पॉइंट गाइस? प्लीज डू लेट मी नो। यस सर। ओके, थैंक्स। नाउ मूविंग ऑन टू द इंडस्ट्री कैपेसिटी। इंडस्ट्री कैपेसिटी का मतलब क्या है कि अगर एक्सेस कैपेसिटी है, अगर मेरी इंडस्ट्री पे एक्सेस कैपेसिटी है, एक्सेस कैपेसिटी का मतलब अनयूटिलाइज्ड कैपेसिटी, तो उसका क्या मतलब है? उसमें प्राइसिंग पावर हाई रहेगी, कंपटीशन हाई होगा या लो होगा, क्या होगा? सर लो होगी ना प्राइसिंग पावर एक्सेस कैपेसिटी है। यस, क्यों? क्योंकि अभी लोगों की फिक्स्ड कॉस्ट भी कवर नहीं हो पा रही। ठीक है, जैसे ही कैपेसिटी फुल हो जाती है, यूटिलाइजेशन 90% के ऊपर पहुंचता है, तो प्राइसिंग पावर हाई हो जाती है कंपनी की। उनको पता है कि मार्केट में सप्लाई नहीं है, तो हम प्राइस को हाई कर सकते। ओके, सो दिस ऑलवेज नोट दिस पॉइंट। अगर एक्सेस कैपेसिटी है इंडस्ट्री में, यूटिलाइजेशन कम है कंपनीज के, तो इसका क्या मतलब होता है और ये होता क्यों है? इट इज अ इकोनॉमिक साइकिल। सपोज करो अभी
So I पावर didn't understand this point. ओके, अभी जैसे पावर इंडस्ट्री है, ओके, पीपल आर आस्किंग फॉर इलेक्ट्रिसिटी, सो वी हैव सम पर्टिकुलर कैपेसिटी ऑफ पावर प्लांट्स, और एक पावर प्लांट को बनने में 3 से 4 साल लगते हैं, ठीक है। अब जैसे जैसे हर साल मेरी डिमांड बढ़ती जा रही है पावर की, वैसे उस तरीके से कैपेसिटी नहीं बढ़ती है। तो क्या होता है, अभी बीच में ये टाइम आ गया था जैसे कि भाई पावर के प्राइसेस बहुत हाई हो सकते हैं। क्यों? क्योंकि डिमांड ज्यादा है और सप्लाई कम है। ओके, तो प्राइसिंग पावर इस समय किसके पास थी? पावर कंपनीज के पास, ठीक है। अब 2 या 3 पावर कंपनीज ने बोल दिया कि हम नया प्लांट एक्सपेंशन कर रहे हैं, हम नया प्लांट बिल्ड कर रहे हैं। तो 2 या 3 साल के बाद क्या होगा, जैसे ही वो कैपेसिटी वर्क में आएगी तो वी विल हैव एक्सेस कैपेसिटी, यस और नो? एक्सेस sir. कैपेसिटी होगी। अब उस एक्सेस कैपेसिटी को बेचने के लिए लोग क्या करेंगे, कॉम्पिटिटर्स प्राइसेस को कम कर देंगे कि भाई अभी हमने नई फैक्ट्री बनाई है, आप हमसे ले लो बिजली। जब सप्लाई कम होती है, प्राइसिंग पावर हाई हो जाती है। एक्सेस कैपेसिटी होने का मतलब यह है कि आपस में कंपटीशन होगा, क्योंकि कहीं ना कहीं आप सोचोगे उस कैपेसिटी को बेचना है, देन यू ट्राई टू रिड्यूस द कॉस्ट। और ये होता किसमें? होमोजीनियस प्रोडक्ट्स के केसेस। अभी मैं इलेक्ट्रिसिटी अदानी से खरीदूं या एनटीपीसी से खरीदूं, कोई फर्क पड़ता है? जो मेरे को कम प्राइस में देगा मैं उससे खरीदूंगा, यस और नो? Yes. हाँ, यस शने, आर यू सेइंग समथिंग? हाँ, they buy power from the cheapest. चीपेस्ट, क्योंकि उसको प्रोडक्ट से मतलब नहीं, होमोजीनियस प्रोडक्ट है। तो एक्सेस कैपेसिटी होना, इसका मतलब अगर आप जैसे किसी केमिकल कंपनी में पैसे लगाने के लिए देखते हो, आप देखते हो 4 मैन्युफैक्चरर है और आप देख रहे हो कैपेसिटी बहुत एक्सेस में है, इसका मतलब इस समय काफी हाई इंटेंसिटी है मार्केट, आपस में कंपनीज में काफी कंपटीशन होगा, एंड विच कैन सप्रेस देयर मार्जिन इन द नियर टर्म, ठीक है। Excess capacity मतलब quantity or whatever they want to sell is in एक्सेस excess. कैपेसिटी मतलब 100 मेगावाट की इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस हो सकती है और मार्केट में सिर्फ 60 मेगावाट की डिमांड है, Okay. ठीक है। मार्केट में डिमांड ही कम है, क्योंकि जब हम कैपेसिटी बिल्ड करते हैं ना, प्लांट बनाते हैं, फैक्ट्री डालते हैं, तो हम ऐसा नहीं करते कि अभी मेरी 100 मेगावाट है तो मैं 10 मेगावाट का पावर प्लांट डाल देता, अभी मेरी 100 मेगावाट है तो मैं उसको 50% इंक्रीज करके 150 की डाल देता, ठीक है। तो कैपेसिटी हमेशा एक्सेस में होती है, क्योंकि हम माइन्यूटली एक्सपेंशन नहीं करते हैं कि 5% डिमांड बढ़ रही है तो हर साल मैं 5% का प्लांट बढ़ाऊंगा, ऐसे तो कर नहीं सकते ना, हाँ, कॉस्ट बढ़ जाएगा। कॉस्ट बढ़ जाएगी। इसलिए मेरे को एक पर्टिकुलर कैपेसिटी तो डालनी पड़ती है मिनिमम, इकोनॉमिक्स ऑफ स्केल को रीच करने के लिए। और यही फायदा कब होता है, जब डिमांड बढ़ जाती है तो कॉस्ट बहुत कम हो जाती है और काफी ज्यादा सप्लाई, Because already excess capacity is in there. ऑलरेडी आपके पास बिल्कुल। कैपेसिटी अवेलेबल है ना, फिर तो इकोनॉमिक्स ऑफ स्केल हो जाएगा, ऑपरेटिंग लीवर स्टार्ट कर देगा काम करना, Understood. ठीक है। Capacity short term versus long term. Short term, understand the minimum time it takes to below which capacity cannot be increased. Longer term, it takes time it takes to increase the long term supply changes. At the same time, it is also important to understand different industry and business cycle effects on supply and demand. तो अभी गाइस क्या हुआ, 2007 या 2008 में बहुत ज्यादा कैपिटल एक्सपेंशन हो रहा था, सब कुछ ग्रो कर रहा था बहुत तेजी से, तो हमारी जो कैपिटल गुड्स की इंडस्ट्री है या इंफ्रा कंपनीज है बहुत ज्यादा एक्सपेंशन कर रही थी, तो ऐसे स्टील सेक्टर ने भी बहुत ज्यादा एक्सपेंशन करा, ठीक है। 2008 के बाद क्या हुआ, स्लंप आया, तो क्या हुआ, डिमांड क्या हो गई, कम हो गई। अभी जिन लोगों ने एक्सेस कैपेसिटी डाली थी वो डेट लेके डाली थी, यस और नो? भाई बड़ा प्लांट या फैक्ट्री डालोगे तो डेट लेनी पड़ेगी, अब आप उसको चुका नहीं पा रहे हो डेट को, क्यों? क्योंकि आपने जो नया प्लान डाला था डिमांड कम हो गई, तो देयर इज नो बायर फॉर दैट,
तो उसके बाद इशू क्या हुआ कि बहुत सारी कंपनी बैंकरप्ट हो गई। तो इफ यू रीड द न्यूज और समथिंग लाइक दैट, तो बहुत सारी स्टील कंपनीज बैंकरप्ट हो गई थी जिनको एनसीएलटी में गया, तो अभी किसी को किसी ने खरीद लिया, किसी को किसी ने खरीद लिया, सब लोगों ने बाय करा उसको। ठीक है, बाय करा, कोई भी कैपेसिटी एक्सेस में कोई भी नया प्लांट पिछले 5-10 सालों में बनाएंगे। ठीक है, तो उसकी वजह से क्या हुआ, 10 साल में धीरे 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 अपनी डिमांड बढ़ी। तो अभी क्या केस आ गया है कि अभी कैपेसिटी और डिमांड लगभग लगभग बराबर है। तो अगर और कैपेसिटी एक्सपेंशन में लेट होगा तो प्राइसिंग पावर बढ़ेगी कि घटेगी स्टील मेकर्स की? क्या होगा, प्राइसिंग पावर बढ़ेगी कि घटेगी स्टील मेकर्स की? अगर कैपेसिटी एक्सपेंशन नहीं होता है, कंपनीज नहीं करती है जल्दी, तो प्राइसिंग घटेगी। बढ़ेगी। बढ़ेगी। क्यों? क्योंकि सप्लाई क्या है, कम है और डिमांड बढ़ रही है। और थोड़ी बहुत सप्लाई क्यों कम हो गई? क्योंकि जो चाइना से हम लोग स्टील इंपोर्ट करते थे उस पर गवर्नमेंट ने बैन लगा दिया। तो जो एक्स्ट्रा सप्लाई हमको बाहर से आती थी वो भी हमारी कम है। सो इस बार पॉइंट क्लियर टू यू गाइस? बताओ क्लियर दिए तो। मूविंग ऑन टू फिजिकल कैपेसिटी। फिजिकल कैपेसिटी can take longer time to create. In contrast, human capital capacity is easy to increase. For example, during COVID, you could imagine the challenge for pharma companies to decide on increasing their physical capacity, because the increased capacity cannot be used later once the supply exceeds the demand. तो कभी कभी वन टाइम डिमांड बढ़ रही है तो उसमें भी लोग कैपेसिटी को इंक्रीज नहीं करते। Market share stability, again linking the barriers to entry, price competition, capacity should also lead an analyst to check the market share of the companies over time. So guys, आप इधर देख सकते हैं कि 2009 में स्मार्टफोन ऑपरेटिंग सिस्टम जो प्रोवाइड कर रहे थे उसमें इंटेंस कंपटीशन था। तो विद टाइम नाउ यू सी ओनली मेजरली द 2 ऑपरेटिंग सिस्टम्स आर लेफ्ट, एंड दैट टू द कंपटीशन इज वेरी लो, क्योंकि एक ही कंपनी के पास मेजॉरिटी ऑफ द शेयर मार्केट शेयर है। तो ये समझ में आ रहा है 2009 से लेकर 2016 का एवोल्यूशन, किस तरीके से पोजीशन चेंज हो गई। आर यू एबल टू अंडरस्टैंड दिस चार्ट गाइस? प्लीज रिस्पॉन्ड गाइस। यस सर। ओके, नाउ वी कम टू द इंडस्ट्री लाइफ साइकिल विच आई वाज टॉकिंग अबाउट, कि हर इंडस्ट्री की एक लाइफ साइकिल होती है। हाई ग्रोथ स्टेज होती है, हाई प्राइसिंग पावर होती है, लो प्राइसिंग पावर होती है, लो ग्रोथ स्टेज होती है। और वो कैसे स्टार्ट होती है? वो एम्ब्रियोनिक स्टार्ट होती है। बहुत ही शुरुआत होती है जब स्लो ग्रोथ होती है। बिल्कुल शुरुआत में प्राइसेस बहुत हाई होते हैं, लोगों की एक्सेप्टेंस नहीं होती है, सिग्निफिकेंट इन्वेस्टमेंट और हाई रिस्क। तो अभी इस स्टेज को हम बोल सकते हैं, जैसे हमारी जो इलेक्ट्रिक व्हीकल की स्टेज है वो इस स्टेज में है कि नहीं है? इलेक्ट्रिक व्हीकल वाली स्टेज, ग्रोथ अभी ज्यादा नहीं है, प्राइसेस क्योंकि बहुत हाई है और सिग्निफिकेंट इन्वेस्टमेंट कंपनीज कर रही हैं और रिस्क हाई है कि ऐसा भी हो सकता है कि लोग एक्सेप्ट ही ना करें। फिर आती है आपकी ग्रोथ स्टेज, रैपिड डिमांड ग्रोथ, इंप्रूविंग प्रॉफिटेबिलिटी, फॉलिंग प्राइसेस। अभी क्या हो गया, नई टेक्नोलॉजी आ गई, टेक्नोलॉजी अडॉप्शन हो गया, लोगों ने खरीदना चालू कर दिया, तो क्या होता है, आपकी टेक्नोलॉजी के प्राइस और R&D के प्राइस भी गिर जाते हैं। तो प्राइस आपका भी इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का धीरे धीरे आप देखोगे कि जो मॉडल्स आएंगे उनके कम प्राइसेस के मॉडल्स भी आना चालू हो। और कंपटीशन क्या होगा, सिंस द ग्रोथ इज रैपिड, कंपटीशन ज्यादा आपस में होता नहीं है, क्योंकि कोई भी कहीं पे भी बेच सकता है चीज। ठीक है, फिर क्या होता है, शेक आउट। थोड़ी थोड़ी ग्रोथ स्लो होना चालू होती है। अब ग्रोथ स्लो होगी तो क्या होता है, फिर सबको एक दूसरे का मार्केट शेयर चाहिए, क्योंकि इंक्रीमेंटल रेवेन्यू हम क्रिएट नहीं कर पाते। तो उसकी वजह से क्या होता है, इंटेंस कंपटीशन एंड डिक्लाइनिंग प्रॉफिट। शेक आउट के बाद आता है आपका मैच्योरिटी। मैच्योर मतलब पूरी इंडस्ट्री ही मैच्योर हो गई, पेनिट्रेशन बहुत हाई हो गया।
अब आप नया कस्टमर नहीं कर सकते। जैसे आप सपोज करो टेलीकॉम कंपनी है, तो टेलीकॉम कंपनी इस समय कौन से फेज में, कोई बता सकता है? Mature phase. फेज में, इन विच फेज टेलीकॉम कंपनीज? Mature phase. तो यू कैन से इट इज बिटवीन समथिंग मैच्योर एंड शेक आउट। मैच्योर इसलिए हो चुकी है क्योंकि शायद 90% लोगों के पास इंडिया में अब फोन आ चुका है, ठीक है। शेक आउट और मैच्योरिटी के बीच में इसलिए क्योंकि अभी भी हमारी जो ब्रॉडबैंड कैपेसिटी है वो कम है, तो वो बढ़ने का अभी भी स्कोप है, बट ग्रोथ ज्यादा नहीं है। इंडस्ट्री कंसोलिडेट हो चुकी है, 8-10 प्लेयर होते थे, अब बस 3 प्लेयर बचे, कंसोलिडेशन हो चुका है और बैरियर टू एंट्री हाई है क्योंकि ड्यू टू हाई लाइसेंस एंड स्पेक्ट्रम कॉस्ट। उसके बाद क्या होता है? डिक्लाइन, नेगेटिव ग्रोथ, एक्सेस कैपेसिटी एंड हाई कॉस्ट। तो गाइस किसी को कोई डाउट किसी फेज में, प्लीज आस्क। ये ज्यादातर हर इंडस्ट्री की अपनी लाइफ साइकिल होती है, हर इंडस्ट्री। एनी डाउट ऑन दिस पॉइंट गाइस? अब ऐसा नहीं है कि पर्टिकुलरली हर आप बोलो कि सर ये तो मैच्योर फेज है, तो मैच्योर में तो ये हो सकता है, जरूरी नहीं है। अगर आप ई कॉमर्स इंडस्ट्री देखो तो ई कॉमर्स इंडस्ट्री कंसोलिडेट हो गई है कि नहीं हो गई है? इंडिया की ई कॉमर्स इंडस्ट्री यस सर। हो चुकी है, मेजरली 2 प्लेयर बचे हैं, यस मैं सर। समझ सकता हूँ। लेकिन हाँ, ग्रोथ अभी है कि नहीं है? है सर। Yes, क्योंकि sir. पेनिट्रेशन अभी बाकी है। तो यू कैन से इट इज जस्ट बिटवीन समवेयर बिटवीन ग्रोथ एंड शेकआउट। बट इसका मतलब ये नहीं कंपटीशन लो है, कंपटीशन तो हाई है, बैरियर टू एंट्री भी अब हाई। एम आई क्लियर ऑन दिस पॉइंट गाइस? Yes, sir. सर कोई डिक्लाइनिंग फेज में कोई इंडस्ट्री है क्या? डिक्लाइनिंग फेज में, इंडिया में इंडस्ट्री डिक्लाइनिंग फेज में इसलिए नहीं होती क्योंकि इंडिया का पेनिट्रेशन और पॉपुलेशन ग्रोथ ठीक ठाक है। बट इफ यू विल सी इन यूरोप, तो जैसे सपोज करो आपका फ्यूल बेस्ड कार्स होती हैं, जो पेट्रोल एंड डीजल वाली गैसोलीन कार्स, हम्म, तो अभी वो डिक्लाइनिंग फेज में। एक तो क्या है, वहां पे सब लोगों के पास जनरली कार होती है, मैच्योर है, और दूसरा क्या है, इलेक्ट्रिक व्हीकल के चक्कर में अभी वो डिक्लाइनिंग फेज में स्टार्ट हो। और इवन आपकी एयरलाइन इंडस्ट्रीज हैं जो वेस्टर्न में या यूएस में, वहां पे जनरली द पेनिट्रेशन इज वेरी हाई। इंडिया में एयरलाइन इंडस्ट्री ग्रोइंग इंडस्ट्री है क्योंकि वी आर इन अ सम यंगर फेज ऑफ दैट इंडस्ट्री। इज दिस क्लियर श्रेयांश? यस सर। ओके गाइस, अब इंडस्ट्री लाइफ साइकिल को यूज कैसे करना है? ग्रोथ, मैच्योर एंड डिक्लाइन। ग्रोथ फेज में कंपनीज डू नॉट गिव डिविडेंड्स, उनको ग्रो करना होता है, उनको एक्सपेंड करना होता है, तो दे विल नॉट गिव यू डिविडेंड्स। री इन्वेस्टमेंट ऑफ कैश फ्लोज फॉर न्यूअर प्रोडक्ट्स। मैच्योर हो जाते हैं, इंक्रीमेंटल डिमांड फ्रॉम द सेम कस्टमर्स। मैच्योर का मतलब अभी जो एग्जिस्टिंग कस्टमर है उनसे डिमांड बढ़े तो ठीक है, नए कस्टमर्स नहीं आएंगे क्योंकि सब पे वो प्रोडक्ट पहुंच चुका है, ठीक है। तो जैसे अभी टेलीकॉम इंडस्ट्री है, इंक्रीमेंटल डिमांड फ्रॉम सेम कस्टमर मतलब मैं हूं, मैंने अपना डेटा कंजम्पशन बढ़ा लिया। अभी नई सिम बेचने का स्कोप कम है क्योंकि जनरली मोस्ट ऑफ द पब्लिक के पास सिम आ चुके। कॉस्ट रैशनलाइजेशन स्ट्रेटजी, तो मैच्योर हो जाता है तो कंपनीज प्रॉफिट बढ़ाने का सोचती हैं, तो नाउ दे थिंक इन टर्म्स ऑफ कॉस्ट, कि किस तरीके से हम कॉस्ट ऑप्टिमाइजेशन कर सकते हैं, किस तरीके से नई टेक्नोलॉजी लाके हम कॉस्ट को रिड्यूस कर सकते हैं, ठीक है। जब रेवेन्यू साइड से हमारा प्रॉफिट नहीं बढ़ रहा तो क्या हम कॉस्ट को कुछ हद तक कम कर सकते हैं जिससे हम अपनी प्रॉफिटेबिलिटी को बढ़ा। ओके,
डिक्लाइन फेज में प्रॉफिट्स आर कंसिस्टेंट बट नॉट ग्रोइंग, यूनिट प्राइसेस ऑफ प्रोडक्ट्स आर डिक्लाइन, पर यूनिट प्राइसेस हमारे प्रोडक्ट के डिक्लाइन करना चालू कर देते हैं क्योंकि ग्रोथ नहीं हो रही है। इज दिस स्लाइड क्लियर टू यू गाइस? कोई डाउट किसी को? स्पॉटिंग वार्निंग साइंस, वी मस्ट बी अलर्ट एज एन एनालिस्ट to look for signs like blow to understand at what stage the industry is. This can give an analyst the approach to forecast the business dynamic at an industry level in the coming. तो गाइस जब हम अगर हम इंडस्ट्री लेवल पे देखते हैं तो हमें काफी चीजें आसान हो जाती हैं इस तरीके से देखना कि ये इंडस्ट्री का फेज क्या चल रहा है, ग्रोथ फेज में, मैच्योर फेज में, डिक्लाइन फेज में, उससे काफी सारी चीजें फोरकास्ट करने के लिए आसान हो जाती है, ग्रोथ रेट एजम्पशंस लेने में काफी आसानी होती है। तो बहुत सारे ब्लंडर इस तरीके से खत्म हो जाते हैं अगर हमको ये पता हो कि भाई सप्लाई डिमांड क्या चल रही है, क्या कैपेसिटी है, क्या ग्रोथ है, किस फेज में ये इंडस्ट्री है। तो हाई ग्रोथ कंपनीज, स्लो ग्रोथ कंपनीज को हम डिफरेंशिएट कर सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ देयर इंडस्ट्री। अब गाइस मैक्रो इकोनॉमिक इन्फ्लुएंस सबका होता ही है, जीडीपी ग्रोथ, अगर कंट्री ग्रो नहीं कर रहा है तो इट इज वेरी डिफिकल्ट फॉर दैट इंडस्ट्री टू ग्रो फॉर इन अ लॉन्गर टर्म। क्रेडिट ग्रोथ, कितना ज्यादा कंजम्पशन हो रहा है, जितनी ज्यादा क्रेडिट ग्रोथ होगी उतना बढ़िया है क्योंकि जब लोग पैसे उधार लेंगे तो वो कहीं ना कहीं इन्वेस्ट करेंगे या वो कुछ ना कुछ प्रोडक्ट खरीदेंगे। ठीक है। इन्फ्लेशन, इन्फ्लेशन इज अ बाय प्रोडक्ट ऑफ क्रेडिट ग्रोथ। क्रेडिट ग्रोथ मतलब जितनी आसान बोरोइंग होना चालू हो जाएगी उतने बंदे को इजीली पैसा मिल जाएगा और इतना वो कंजम्पशन करना चालू करेगा, तो हो सकता है उसके चक्कर में इन्फ्लेशन भी हो जाए। फिर इन्फ्लेशन बढ़ने के बाद क्या होता है, बंदे की सेविंग्स कम हो जाती है तो फिर से उसका कंजम्पशन घट जाता है। सो ऑल दिस इज सिक्लिकल, पूरा का पूरा सिक्लिकल है, पहले बढ़ता है फिर घट जाता है। क्यों? क्योंकि ह्यूमन बिहेवियर इज इरेशनल, उस पर ज्यादा पैसे आते हैं, वो ज्यादा खर्चा करना चालू कर जाता है, ग्रोथ होती है, फिर क्या होता है, ग्रोथ के साथ साथ इन्फ्लेशन बढ़ने लग जाता है, इन्फ्लेशन हो जाता है तो क्या होता है, बैंक्स बोरोइंग को टाइट कर देती है, बैंक्स इजीली पैसे अब नहीं देती तो लोगों के पास पैसे कम हो जाते हैं तो फिर उनका कंजम्पशन फिर से हो जाता है। तो दिस गोज हैंड इन हैंड। उसको आरबीआई क्या करता है, पूरी कोशिश करता है बैलेंस करने की कि इन्फ्लेशन भी बैलेंस रहे और क्रेडिट ग्रोथ भी होती रहे। इंटरेस्ट रेट, तो इंटरेस्ट रेट का भी मैंने आपको बताया, क्रेडिट ग्रोथ इज डिपेंडेंट ऑन द इंटरेस्ट रेट। लो इंटरेस्ट रेट होता है तो क्रेडिट ग्रोथ ज्यादा होती है, हाई इंटरेस्ट रेट होगा तो क्रेडिट ग्रोथ कम हो। सर यस सर इंटरेस्ट रेट तो डिमांड सप्लाई से डिटरमाइन होता है ना, आरबीआई तो बस इन्फ्लुएंस करता है थोड़ा क्या? नहीं, डिमांड नहीं, सप्लाई से नहीं होता। आरबीआई when they set the repo रेपो rate उस रेट, basis पे ही सब rates of banks are set। भाई आप अगर इंटरेस्ट रेट कम कर दो, आप इंटरेस्ट रेट 8% पे दोगे और दूसरा बैंक मेरे को 6% पे देगा, तो मैं 8 वाले से लूंगा कि 6 वाले से लूंगा? लोन तो 6 वाले से, बोरोइंग तो 6% से ही 6 होता वाले से लूंगा। होमोजीनियस प्रोडक्ट है, मेरे को कोई क्वालिटी से मतलब थोड़ी है, मेरे को तो लोन लेना है। तो जब ओवरऑल पहले आपको आरबीआई 7% पे लोन देता था, अब आपको 5% पे लोन देता है, तो क्या आप अपना इंटरेस्ट रेट घटाओगे कि नहीं घटाओगे? है, घटाना पड़ेगा ही। आप नहीं घटाओगे तो कोई दूसरा बैंक घटाएगा और फिर कस्टमर्स कहाँ जाएंगे, जो बैंक घटाएगा उसके पास चले जाएंगे। ओके। यस सर। अब गाइस टेक्नोलॉजिकल इन्फ्लुएंस भी देखना पड़ता है कि क्या कोई टेक्नोलॉजी आके कितना डिसरप्शन कर सकती है। ठीक है। जैसे ब्रांडेड फार्मास्यूटिकल्स है, टेक्नोलॉजिकल इन्फ्लुएंस मीडियम टू हाई। Biologic drugs are pushing new therapeutic boundaries and many large pharmaceutical companies have a relatively small presence in biotech. एक अदर टाइप के ड्रग्स आ गए, बायोटेक ड्रग्स, दैट इज अ थ्रेट टू ब्रांडेड फार्मास्यूटिक। ऑयल सर्विसेज पे, industry is reasonably innovative, players must reinvest in R&D to remain competitive. Temporary competitive advantage are possible via commercialization of new products. बट अभी ऑयल सर्विसेज भी क्यों खतरे में है, क्योंकि डिफरेंट काइंड ऑफ एनर्जी सोर्सेज आ गए, like focusing more on the green fuel, green energy. Confection and candy, very low innovation does not play a very important role in the industry. ठीक है।
तो ये आपको देखना पड़ता है कि आप जिस कंपनी का एनालिसिस कर रहे हो वो कंपनी जिस इंडस्ट्री के अंदर है वहां पे इनोवेशन कितना इम्पैक्ट कर सकता है। अब गाइस जैसे सीमेंट इंडस्ट्री है या स्टील इंडस्ट्री है, तो टेक्नोलॉजिकल इन्फ्लुएंस लो होगा, हाई होगा, मीडियम होगा, क्या हो सकता है सीमेंट और स्टील इंडस्ट्री में? सर आपको क्वेश्चन नहीं सुनाई दिया। अगर सीमेंट इंडस्ट्री और स्टील इंडस्ट्री को देखें तो टेक्नोलॉजिकल इन्फ्लुएंस हाई होगा, लो होगा, मीडियम होगा, क्या हो सकता है? लो लो टू मीडियम सर। लो टू मीडियम, ठीक है। लो इसलिए क्योंकि जनरली होमोजीनियस प्रोडक्ट होते हैं, मीडियम इसलिए क्योंकि कुछ कुछ कंपनीज ट्राई करती रहती है नया मटेरियल या नया प्रोडक्ट बनाने के लिए, ठीक है। जैसे लाइट वेट, एफिशिएंटली भी ट्राई करते हैं ना कि सीमेंट हाँ जैसे लाइट वेट स्टील आ गया कि ये स्टील बहुत लाइट है, या कोई एंटी कोरोजन प्रोडक्ट आ गया, एंटी कोरोजन सीमेंट या एंटी कोरोजन स्टील, तो थोड़ा बहुत इनोवेशन होता है बट वो लिमिटेड सेंस में होता है, ठीक है। सो द टेक्नोलॉजिकल इन्फ्लुएंस इज लो टू मीडियम, ठीक है गाइस। एनी डाउट, एनी क्वेश्चंस गाइस? सर ये कौन सा चैप्टर है सर? ये कौन सा चैप्टर है? ये इंडस्ट्री एनालिसिस का चैप्टर है। सच न्यू चैप्टर ओनली ना? आपने आज से like, नहीं, मैंने कल आज क्लास ली थी तो इस चैप्टर का एक टॉपिक पढ़ा दिया था, द इंडस्ट्री क्लासिफिकेशन, अच्छा ठीक है। फिर आता है आपका डेमोग्राफिक, एनवायरमेंटल एंड सोशल इन्फ्लुएंसेस। चेंज इन पॉपुलेशन, एज एंड जेंडर tend to have a significant impact on the economy in terms of consumption. For example, China in 1980s was going through a period of social and economic crisis. Tax rate, regulatory policies, incentives. So guys, ये सारी चीजें भी देखना जरूरी है कि कंट्री किस फेज में चल रहा है, वहां की क्या डेमोग्राफी है एंड हाउ द कंट्री इज डूइंग। एनवायरमेंटल इन्फ्लुएंसेस क्या है, वहां पे कुछ इशू तो नहीं चल रहा है, वहां पे कोई सिविल वॉर तो नहीं छिड़ा हुआ है, वो सारी चीजें भी देखना जरूरी है। इसीलिए अफ्रीकन कंट्रीज में कोई पैसा नहीं लगाता क्योंकि वहां पे इनस्टेबिलिटी, पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी बहुत ज्यादा है। So these are few questions guys, take 5 minutes and read them and then we'll discuss. So guys, can we start discussing the questions? यस सर। पहले का क्या आंसर है गाइस? इंक्रीज इंक्रीज बी इंक्रीज ओके, बी कौन बोल रहा है भाई? बी 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 या ए? सर इंक्रीज Population Increase. that is rapidly aging would most likely cause the growth rate of the industry producing eyeglass and contact lens. तो डिक्रीज क्यों होगा शने? नहीं इंक्रीज ही बोल रहा हूँ, बी बोल रहा हूँ। ए किसने बी बोला? बी बी होगा इसका आंसर। व्हाट अबाउट सेकंड? बी सर इंक्रीज सर बी इंक्रीज। शने? So I think it's not changed because I didn't understand the logic how educational accomplishments are like go direct एजुकेशनल अकॉम्प्लिशमेंट से क्या to होगा? consumer जॉब, discretionary goods. उनको अच्छी जॉब मिलने का चांस रहेगा कि नहीं रहेगा? हाई पेइंग जॉब। हाँ भाई स्किल्ड जॉब्स का प्राइस पेमेंट ज्यादा होता है नॉन स्किल्ड का? skill. तो अगर उनको पैसे ज्यादा मिलेंगे तो वो कंज्यूमर डिस्क्रिशनरी प्रोडक्ट्स खरीदने के लायक होंगे कि नहीं होंगे? Yes. गॉट द पॉइंट नाउ? Hmm. सर व्हाट आई थॉट इज कि ना लाइक एजुकेशनल अकम्प्लिशमेंट अगर उनके ज्यादा रहेंगे सो दे विल स्पेंड मोर ऑन लाइक पेन्स, नोटबुक्स एंड द स्टेशनरी आइटम, सो वो भी तो कंज्यूमर डिस्क्रिशनरी में ही आता है। पेन कंज्यूमर डिस्क्रिशनरी क्यों होगा श्रेयांश? सब नोटबुक्स एंड पेन और स्टेशनरी आइटम्स तो कंज्यूमर डिस्क्रिशनरी में ही आता है। कंज्यूमर डिस्क्रिशनरी आइटम क्या हो सकता है ये बताओ? एक तो सर एफएमसीजी होते हैं। एफएमसीजी कंज्यूमर डिस्क्रिशनरी होता है? आप उल्टा बोल रहे हो, नेसेसिटी आइटम्स और कंज्यूमर डिस्क्रिशनरी आइटम्स अपोजिट होते हैं। ऑटोमोबाइल आपका कंज्यूमर डिस्क्रिशनरी आइटम है,
एफएमसीजी जैसे आप आटा लेते हो वो कंज्यूमर डिस्क्रिशनरी है, नो सर, नेसेसिटी है कि कंज्यूमर डिस्क्रिशनरी है वो? नेसेसिटी। योर सोप, योर टूथपेस्ट, नेसेसिटी। Okay, sir. Got it, sir. गॉट इट? Yes, sir. कंज्यूमर डिस्क्रिशनरी मतलब जिसकी आपके पास पैसा था आपने खरीद लिया बट नेसेसिटी नहीं, Hmm. ठीक है? Yes, sir. थर्ड का आंसर गाइस, A. हाई फिक्स्ड कैपिटल इन्वेस्टमेंट है, अगर हायर प्रॉफिट होगा तो इकोनॉमिक्स ऑफ स्केल आ जाएगा क्योंकि फिक्स्ड कॉस्ट बहुत ज्यादा है। Which of the following life cycle phases is typically characterized by high prices? बी, ग्रोथ। ग्रोथ में प्राइस हाई होता है? यस सर। Mature, sir. A. मैच्योर में प्राइस हाई होता है? बताओ भाई। Yes, sir. Mature phase. Fourth का तो मैच्योर फेज में प्राइस हाई, आई डोंट थिंक कि मैच्योर फेज में कंपटीशन हाई हो जाता है, तो मेरे हिसाब से प्राइस वॉर छिड़ जाता है कंपनीज में, हम्म तो आई डोंट थिंक कि मैच्योर फेज में हाई होगा। so but like growth phase में तो high रखेंगे नहीं because if they try to करेक्ट, तो मैंने आपको ईवी का एग्जांपल दिखाया था कि शुरुआत में जब कोई प्रोडक्ट बनता है तो उसके प्राइसेस बहुत हाई होते हैं क्योंकि टेक्नोलॉजिकल तो एडवांसमेंट C नहीं हो होगा। पाता है, एडॉप्शन नहीं हो पाता है, तो क्या होना चाहिए इसका आंसर? C. C. see also like mature phase में भी हो सकता है ना once like if अच्छा probably I might be thinking अगर if there are 2-3 market players and उनका oligopoly हो गया I mean they combine as sellers then they can obviously increase price that's why इवन like इफ mature दैट इज phase अ में ओलिगोपॉली, तो अगर आपने प्राइसेस बढ़ाए तो वो दूसरे पे चला जाएगा, समझ रहे हो? अगर ओलिगोपॉली like मार्केट, हाँ हाँ, like oligopoly cartel तो मेरे को लगा कि कार्टेल एक अलग चीज हो गया, कार्टेल तो एक समथिंग डिफरेंट, बट वी आर टॉकिंग अबाउट जनरल टर्म, मतलब एक नॉर्मल मार्केट सिनेरियो, okay ठीक है? फिफ्थ का आंसर गाइस, हाई सर तो बैरियर टू आंसर एंट्री है, और आंसर इसका शायद सी होगा, अभी देख लेते हैं, मेरे हिसाब से सी होना चाहिए। ओके सर। फिफ्थ का इंडस्ट्री विद हायर बैरियर टू एंट्री एंड वीक प्राइसिंग पावर, प्राइसिंग पावर अगर वीक है Sir, तो B. स्टेबल Stable. मार्केट सर शेयर बी तो लग होगा रहा है नहीं सर। है। सर बी, स्टेबल मार्केट शेयर्स। वीक प्राइसिंग पावर का मतलब क्या है? Sir, like sir, एक कैप प्राइस है उसके ऊपर वो प्राइस को नहीं चार्ज कर सकते। करेक्ट, तो अगर किसी बंदे ने प्राइस को कम कर दिया तो So but high entry to barriers है ना like सर हम इंडियन high रेलवे barriers का to- एग्जांपल ले सकते हैं। इंडियन रेलवे इज अ मोनोपोली, हाँ तो सर उसमें हाई बैरियर तो है लेकिन फिर प्राइसिंग इतना। बैरियर और मोनोपोली में डिफरेंस है ना हर्ष। अगर गवर्नमेंट दूसरा लाइसेंस ही नहीं दे रही तो फिर आप कैसे डिसाइड करोगे उसका मार्केट सिनेरियो? अकेला प्लेयर है तो उसका तो मार्केट शेयर स्टेबल ही होगा, है ना? भाई मार्केट शेयर आप कब डिसाइड करते हो? तो दो प्लेयर तो हो एटलीस्ट, तभी तो मार्केट शेयर देखोगे। इंडियन रेलवेज का मार्केट शेयर देख के अपन क्या करेंगे? कुछ नहीं। हाई बैरियर टू एंट्री एंड वीक प्राइसिंग पावर आप देख सकते हो एयरलाइन इंडस्ट्री में। So coal mining. कोल माइनिंग में भी शायद कोल इंडिया ही है, या और कोई भी है कोल माइनिंग में? नो। सर और है ना और कौन है? और सबके कैप्टिव पावर प्लांट है, वो कैप्टिव कोल माइंस है जो खुद के लिए यूज कर सकते हैं, कॉमर्शियली बेच नहीं सकते। और जो महानंदा कोल फील्ड्स है, नागपुर कोल फील्ड्स है, वो सब कोल इंडिया की सब्सिडरी है। ओके, सर पीडीलाइट। पिडीलाइट हो सकता है, पर पिडीलाइट के पास तो प्राइसिंग पावर है। सर बट barriers to entry भी लो है।
पिडिलाइट बैरियर टू एंट्री लो इसलिए नहीं है क्योंकि पिडिलाइट कॉम्पिटिटिव एज ज्यादा है उसका। पिडिलाइट इज लाइक अ मैगी इन एडेसिव। सर बट Yes, sir. लेकिन वेरियस एंट्री तो नहीं है ना, बट वो तो उसका मार्केट शेयर ज्यादा है, उसका प्रोडक्ट बैरियर टू एंट्री दो ज्यादा है। तरीके से हो सकते हैं, जैसे अपन ने चॉकलेट वाला डिस्कशन करा था। तो आ तो इजीली सकता है, बट कंपनीज आती नहीं है, क्यों? क्योंकि वहां पे ब्रांड लॉयल्टी बहुत बड़ा फैक्टर होता है। तो पिडिलाइट के केस में ब्रांड लॉयल्टी इज अ वेरी बिग फैक्टर। सर जैसे यहाँ पर सर बैरियर्स टू एंट्री बोलेंगे तो सर सारे फैक्टर्स को देख के बोलेंगे कि सिर्फ एक एंट्री एग्जिट का एक तो बैरियर? हो गया कि भाई एंट्री और एग्जिट इजी है कि आसान है। एक होता है कि कंपनी एंट्री क्यों नहीं कर रही है। ठीक है, तो वो भी एक तरीके का बैरियर हो गया ना, ब्रांड लॉयल्टी, कि इस इंडस्ट्री के कंज्यूमर्स हैं वो मैगी को बहुत ज्यादा पसंद करते हैं। तो वो एक तरीके का बैरियर ही हो गया, इसीलिए कंपनीज आना नहीं चाहती हैं। अगर वो चीज ना होती तो कंपनीज आती कि नहीं आती, आती। है ना? आर यू गेटिंग माई पॉइंट रेंज? यस सर। तो अभी इंडस्ट्री विद हाई बैरियर टू एंट्री एंड वीक प्राइसिंग पावर। देखो, वीक प्राइसिंग पावर है, इसका मतलब उसके स्टेबल मार्केट शेयर नहीं हो सकते। क्यों? क्योंकि कंपनी, अगर कल को कोई कंपनी आके प्राइस को कम कर दे तो कस्टमर उसके पास चला जाएगा। दे डोंट हैव एनी पावर। अगर स्ट्रॉन्ग प्राइसिंग पावर है, पिडीलाइट का मार्केट शेयर इंटैक्ट क्यों है? एक तो ब्रांड और दूसरा प्राइसिंग पावर। वो 5 रुपए से 6 रुपए कर देगा फेविक्विक, तो भी लोग फेविक्विक ही खरीदेंगे। क्या वो दूसरे प्रोडक्ट पे जाएंगे? वीक प्राइसिंग पावर का मतलब है जैसे ही आपने प्राइस बढ़ाए, कस्टमर दूसरे उस पे चला गया, दूसरी कंपनी पे चला गया। तो क्या इनके शेयर स्टेबल रहेंगे? नो सर। ठीक है। अब आता है सी, सिग्निफिकेंट नंबर ऑफ इश्यूड पेटेंट्स। बहुत सारे पेटेंट्स इश्यूड हैं। अब पेटेंट इशूड होते हैं तो वीक प्राइसिंग पावर तो होती है, करेक्ट है। आई थिंक इसका आंसर ए या सी में से होगा, क्योंकि पेटेंट्स अगर बहुत सारे हैं तो इसका मतलब बैरियर टू एंट्री कम है। कोई भी पेटेंट इशू कर पा रहा है वहां का, उस कंपनी का या उस टेक्नोलॉजी का। इट इज इजी टू इशू पेटेंट्स इन दैट पर्टिकुलर मार्केट। तो ये इसका लॉजिक ये होगा कि हाई बैरियर टू एंट्री मतलब आपने एंट्री तो कर ली और प्राइसिंग पावर आपके पास है नहीं। तो आइदर यू नीड टू गो बैंकरप्ट, या आपके लिए स्ट्रगल कर, बहुत ज्यादा स्ट्रगल हो जाएगा मार्केट में। तो गुड कंपनीज आर विद हाई बैरियर टू एंट्री एंड विद प्राइसिंग पावर। तो अभी हम इसका सॉल्यूशन में आंसर पढ़ेंगे, बट आई थिंक इट माइट बी ए। लेट्स सी, विल डिस्कस इट, विल जस्ट कीप इट फॉर फर्दर डिस्कशन। सिक्स्थ का आंसर गाइस, इकोनॉमिक वैल्यू कब क्रिएट होगी? अबव कॉस्ट ऑफ कैपिटल जब रिटर्न आए। अबव कॉस्ट ऑफ कैपिटल रिटर्न आए। भाई जितना पैसा लगाया है, जितनी डेट जिस इंटरेस्ट पे ली है या इक्विटी ली है किसी रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न से, तो उससे ज्यादा पैसा तो मेरा बनना चाहिए। ये क्वेश्चन क्लियर है गाइस? हर्ष, यस सर। which of the following industry is most likely to be characterized as concentrated with strong pricing power? Asset management company, asset management companies और म्यूचुअल फंड कंपनीज। प्राइसिंग पावर एल्कोहलिक सर। स्ट्रॉन्ग, प्राइसिंग पावर स्ट्रॉन्ग होती है एसेट मैनेजमेंट कंपनीज की? नॉर्मल होती है सर। नॉर्मल होती है। कमीशन बेस्ड बिजनेस है, अगर प्राइस ज्यादा बढ़ा देंगे तो कस्टमर स्विच कर जाएगा। एल्कोहलिक बेवरेज यस सर, बी। और आपका पर्सनल प्रोडक्ट्स, तो किसकी प्राइसिंग पावर ज्यादा होती है, अल्कोहलिक बेवरेज की या हाउस होल्ड एंड पर्सनल प्रोडक्ट्स की? बी बी। और एल्कोहल। दूसरा, हाउस होल्ड एंड पर्सनल प्रोडक्ट्स आर नॉट कंसंट्रेटेड इंडस्ट्री ऑल्सो। एल्कोहलिक इंडस्ट्री आपकी कॉन्सेंट्रेटेड भी होती है ड्यू टू हाई बैरियर्स टू एंट्री। इसका आंसर बी होना चाहिए। व्हाट डू यू से गाइस? श्रेयांश? सर बी लग रहा है। ओके, शने, आर यू देयर? शने हैज गॉन समवेयर आई गेस।
with respect to competitive strategy, a company with a successful cost leadership strategy is mostly characterized by. कॉस्ट लीडरशिप स्ट्रेटेजी मतलब कॉस्ट को कम करने की कोशिश हो रही है, टेक्नोलॉजी इनोवेशन या इन्वेस्टमेंट करके कॉस्ट कम करने की कोशिश है. तो रिड्यूस्ड मार्केट शेयर, रिड्यूस मार्केट शेयर का कोई लेना देना होगा गाइस इसमें? No, sir. एबिलिटी टू ऑफर अ प्रोडक्ट एट हायर प्राइसेस देन दोज ऑफ इट्स कॉम्पिटिटर्स. अगर मैं कॉस्ट कम कर रहा हूं तो प्राइस हाई या लो करने का कोई पॉइंट है? No, sir. मैं तो कॉस्ट को कम करना चाहता हूँ ना प्रॉफिट बढ़ाने के लिए, प्राइसेस तो मैं सेम रखने वाला हूँ. तो आई थिंक इसका आंसर ए A. होगा, लो कॉस्ट ऑफ कैपिटल. बिकॉज कैपिटल अगर उसको सस्ते में मिल रही है तो व्हाट इट विल डू, व्हाट दे विल डू, दे विल ट्राई टू इन्वेस्ट दैट मनी इन सम काइंड ऑफ इनोवेशन या टेक्नोलॉजी बाय करके कॉस्ट को कम कोशिश कर. अभी सबसे बड़ा अपना डाउट था पहले फोर्थ के लिए, एम्ब्रियोनिक स्टेज इज कैरेक्टराइज्ड बाय स्लो ग्रोथ एंड हाई प्राइस. ठीक है, इट इज रॉन्ग. कैरेक्टराइज्ड बाय स्लो ग्रोथ, स्लो नहीं बोल सकते, मीडियम ग्रोथ बोल सकते हैं. एम्ब्रियोनिक स्टेज गाइस मतलब तब होती है जब कंज्यूमर्स ने पूरा प्रोडक्ट को अडॉप्ट भी नहीं किया होता है. ठीक है, जब आपका जो प्रोडक्ट है ना उसकी कॉमर्शियल वायबिलिटी भी ढंग से पता नहीं है, सिर्फ कुछ कस्टमर्स ही बाय कर रहे हैं. ठीक है, तो यू में से लाइक स्लो एंड मीडियम ग्रोथ. इंडस्ट्री विद हाई बैरियर टू, फिफ्थ वाला, an industry that has high barrier to entry generally requires substantial physical capital or financial investment. Correct. With weak pricing power in the industry, finding a buyer for excessive capacity may be difficult. अच्छा, so guys they are thinking in terms of exiting. आप कभी किसी इंडस्ट्री से एग्जिट कैसे करोगे? जब आपको कोई बाय करेगा. तो अगर हाई बैरियर टू एंट्री है और प्राइसेस वीक है तो इट इज वेरी डिफिकल्ट कि उसको कोई बाय करे. तो डेट इज वाई द आंसर इज ए. और किसमें डाउट था? सिक्स्थ का बी, सिक्स्थ का सी है, अबव एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल. बी एल्कोहलिक बेवरेज, करेक्ट. एंड एट्थ का ए करेक्ट है, कंपनीज विद लो कॉस्ट स्ट्रेटेजी. कोई डाउट गाइस किसी क्वेश्चन में? No, sir. हर्ष? सर हाँ हर्ष बताइए. क्वेश्चन फिफ्थ में थोड़ा डाउट था सर. हाँ बताइए. नो सॉरी, क्वेश्चन फोर्थ में. एम्ब्रियोनिक स्टेज. हाँ सर. तो मैंने जैसे आपको बताया इलेक्ट्रिक व्हीकल का एग्जांपल ले लीजिए. सबसे पहले एम्ब्रियोनिक स्टेज थी इलेक्ट्रिक व्हीकल की जब टाटा ने और ह्यूंडई ने कार निकाली थी. तो गाइस मंथ में एक या दो कार बिकती थी, एक 5 बिक गई, 10 बिक गई, इस टाइप से सेल होती थी. ठीक है, तो उसमें क्या इशू था कि प्राइजेस बहुत हाई थे. अभी प्राइजेस कम हो गए. प्राइजेस कम कैसे हुए? गवर्नमेंट ने थोड़ी सब्सिडी वगैरह देना स्टार्ट करा. ठीक है, और लोगों को पता नहीं था कि भाई इसको अडॉप्ट करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए. So embryonic stage is that stage when your product is just introduced. आपको adoption भी नहीं पता है कि इसका adoption कैसा होने वाला है. हर्ष, यस सर. is this clear now? यस सर. So guys, these are the characteristics given of various industries. कि किस इंडस्ट्री की क्या characteristics है. I think you can read these characteristics. We have read it in the above slides also. And if you have any doubt, please do let me know. We can move on if something new is there. We have read this technological influence on these three industries. Cyclical and defensive. Growth. So guys, there can be three kind of cycles: growth, defensive and cyclical. Growth industry, high growing industry. Defensive, जिसके प्रोडक्ट्स बिकेंगे ही बिकेंगे. हाई ग्रोथ नहीं है, जैसे टूथपेस्ट है, सोप है, तो इन केस कल को रिसेशन आ जाता है, लोगों की जॉब चली जाती है, तो विल यू स्टॉप यूजिंग सोप?
नो। नो सर। बट आप क्या करोगे, हो सकता है आप गाड़ी खरीदना बंद कर दो, आप कार नहीं खरीदोगे, हो सकता है आप ट्रेवल करना बंद कर दो, आप घूमना बंद कर दो। सो दीज आर योर सिक्लिकल इंडस्ट्री। ये मतलब अनवांटेड एक्सपेंडिचर्स। अनवांटेड एक्सपेंडिचर, जो बेसिक एक्सपेंडिचर है, दवाई तो खाओगे ना, फार्मा, हम्म। योर डिफेंसिव इंडस्ट्री। So cyclical demand is highly variable and depends on oil prices, exploration budgets, and economic side. Defensive demand for candy and gum is extremely stable. तो किसी भी कंपनी को अगर आपको चेक करना है तो आपके पास ये चेकलिस्ट होनी चाहिए। डिमांड एनालिसिस, डिमांड साइड, कि भाई उस कंपनी के प्रोडक्ट्स की डिमांड कैसी है, क्या लाइफ साइकिल है, क्या किस तरीके से वो बिहेव कर रहा है। प्राइसिंग एनालिसिस, कितने कॉम्पिटिटर्स हैं मार्केट में, तो कंपनी की प्राइसिंग पावर कैसी है। फिर आता है आपका सप्लाई एनालिसिस। सप्लाई एनालिसिस मतलब क्या कैपेसिटी है इस समय मार्केट में, कितने प्लेयर हैं, उनकी कैपेसिटी क्या है, क्या कोई एक्सपेंशन भी चल रहा है, क्या कोई मेजर एक्सपेंशन मार्केट में होने वाला है। और फिर आता है आपका फाइनेंशियल रेशियोज एंड मेजर्स। तो पहले इट इज लाइक अ टॉप टू बॉटम अप अप्रोच। पहले आपने ब्रॉडर लेवल पे देखा इंडस्ट्री के बारे में, कंपनी के बारे में, एंड देन यू मूव्ड ऑन टू द फाइनेंशियल रेशियोज एंड मेजर्स। So guys, this topic is done. We will take a break of कितने मिनट, 10-15 मिनट्स का ब्रेक ले लें। एंड आई वांट गाइस, लाइक आई वांट कि आज हमारा लास्ट टॉपिक भी इक्विटी का कंप्लीट हो जाए, तो कंप्लीट इक्विटी विल बी डन। 10 मिनट्स। ठीक है, तो आई थिंक वी विल मीट अराउंड 5:45। ओके सर। इज दिस फाइन? यस सर। इक्विटी में नंबर वाइज एसेट्स कितने टॉपिक्स है? यार नंबर वाइज याद नहीं है, बट आई थिंक एटलीस्ट 4 to 5 टॉपिक्स हैं। 6 सर, 6 रीडिंग्स। इसके बाद एक रीडिंग और बचती है जो वैल्यूएशन। ओके ठीक। ओके गाइस, थैंक यू गाइस, विल ओके।